من الشيطان الرجيم
ہمارے دیگر بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد سلام شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی جن ٹکڑ لب گرمینوں مقتل چولے آویکھ لتو بھر جائی شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی ہاتھ لب دی پیر لب دی کر دی چہرہ لب دی کوئی ثابت نہیں سی قاسم دے پاک بدن دا کیویں ماں ترتیب بنائی شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی ویر باندھی بک دی شیر بازار وچ کچھ سیت کچھ سہرے نے کچھ قیدن بیویاں اتر دلاش وکھائی بول تیرے جد کھولی قاسم دے لئی وچ لاش نہ پوری آئی شاگٹھڑی کھول کے جد دو خون چ ہوئی پہلی باری رسم بنائی شاگٹھڑی کھول کے جگ پروانوں اتر دلاش وکھائی سب پردی کے سلام آج بھی سینا کی آتی ہے صدا خائی حسین آج بھی سینا کی آتی ہے صدا خائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی
آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کیسے گرا کر خود کو تکتی ریت پر، چلتے نہ کیسے گرا کر خود کو تکتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے آئی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، اے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سر آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سر آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے خوشنودی شہزادہ قاسم علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا، کبرا کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا،
قاسم کو اٹھا لائے پروان بھی قاسم کے پروان بھی قاسم کے لاشے کو نہ پہچانا کبرا کو اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا کبرا کو قاسم تیرا مر جانا ایک رات کی بیاہی سے قاسم نے کہا رو گئے تم جاتے ہو مقتل میں تم جاتے ہو مقتل میں مجھ کو ہے کدھر جانا کبرا کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا کبرا کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا شبیر نہیں بھولے یوں تیرا بچھڑ جانا کبرا کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا کبرا کا اجڑ جانا قاسم تیرا مر جانا ہمارے دیگر سلام ہاشمی دے صحرا پایا جدو چن قاسم صحرا پایا خوش ہوئی پھیات مارا جدو چن قاسم صحرا پایا جدو چن قاسم صحرا پایا جس دم دولہا بڑیا قاسم حسن یوسف نے بھی اس دم کیتیاں ہیٹھ نگاہ جدو چن قاسم صحرا پایا جدو چن قاسم صحرا تک کے قاسم دے سہرے کو دتیاں مبارکاں ایک دوجے دوئی بھیڑ بھراوا جدو چن قاسم صحرا پایا جدو چن قاسم صحرا پایا خوش ہوئی پھیات مارا جدو چن
قاسم صحرا پایا جدو جن قاسم صحرا پایا. سلام. بادی کر سلوات. تیرا صحرا قاسم ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا قاسم ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا رنگ مہندی کا تجھے رنگ مہندی کا تجھے راس نایا. قاسم ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا سب نبی زادیاں سر پیٹ کے کرتی تھی بکا. شور ماتم کا اٹھا ہو گیا پہرام بتا. آیا خیمے میں جوہی آیا خیمے میں جوہی. تیرا جنازہ قاسم سا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا قاسم ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا غم سے بےحال ہوئی ہے تیری دلہن کو بڑا. ہائے افسوس ہوا خون میں رنگی سیرا. بین کرتی تھی سکینہ بین کرتی تھی سکینہ. میرا بھیا قاسم ایسا ڈوبا ہے لہو میں. تیرا صحرا روک پروان کہا لال تیرے جانے کے بعد. تو ہی بتلا بے بھلا کیسے کروں میں فریاد. کیسے بھولوں میں تیرا کیسے بھولوں میں تیرا. چاند سا چہرہ قاسم
रंग मेहंदी का तुझे रास लाया कासिम। रूफ मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। कहाँ गए हो बड़ी देर हो गई बाबा, कहाँ गए हो बड़ी देर हो गई बाबा, सदाएं क्यों नहीं सुनते यतीम की बाबा, कहाँ गए हो बड़ी देर हो गई बाबा, कहाँ गए हो। अगर मैं जानती वो लौट कर ना आएगा, अगर मैं जानती वो लौट कर ना आएगा, कभी मैं आपसे पानी ना मांगती बाबा, कहाँ गए हो बड़ी देर हो गई बाबा, कहाँ गए हो। तमाचिश मार के कातिल मुझे डराता है, तमाच मार के कातिल मुझे डराता है, बड़ी कठिन है यतीमी की जिंदगी बाबा, कहाँ गए
شہراد ماتمی تیرا بڑا غریب ہے شہراد ماتمی تیرا نہ زندگی میں اسے ہو کوئی کمی بابا کہاں گئے وہ بڑی دیر ہو گئی بابا صلوات محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقت کی مناسبت کو مجھے خاطر رکھتے سلام کے چند اشعار درود کا سہارا دیجیے اللہ تجھ پر سلام اسلام کا اے غریب نینوا تجھ پر سلام اسلام کا یہ تیرا عہد ضعیفی یہ جوان تیور جہاں پھر صدار لافتہ تجھ پر سلام اور حریات کی روح بھر دی اے کرے اسلام میں مالک سیف و لوا تجھ پر سلام اور کوئی پھر تجھ سا نہ دیکھا آشنا درد دل اے دل درد آشنا
خدا بنایا تھا تجھے قاسم کل کو کبا تجھ پر سلام اور برچھیوں پر تو نے سینہ رکھ کے دل دکھلا دیا ہم شبیہ ہے مصطفیٰ تجھ پر سلام اور تیر کھا کر مسکرایا جو بدر کی گود میں بے زبان و بے خطا تجھ پر سلام اسلام کا رہ رہی سے دو سرا تجھ پر سلام اسلام کا اے غریب نینوا تجھ پر سلام اسلام کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalandaran bastım, Bandai Murtada Ali yastım, Peşvai tamamul imdanım, Cesade kuvve-i imdanım. Edriyam, Kalandaran bastım, Bandai Murtada Ali yastım, Ki kiska batan hai, to zameen pe kaam ka. Suleyman nagara hai. اہل کعبہ کا مصیبت کی گھٹا چھائی ہے اہل کعبہ کا مصیبت کی گھٹا چھائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے پردہ-داران حرام برسر بازار غزا بلوائے عام میں زین نہ کھلے سر
اور جن کو سورج کی ضیا دیکھ کے شرمائی ہے، رنگ امت کا دیگر گوں ہے مدینے والے، اور ہے تیری بیٹیاں اور خلق تماشائی ہے، تیرا گھر لوٹ کے برباد کیا امت نے، اور تیرے شبیر کو غربت میں گزاری ہے، تیر سے پیاس بجھی ہائے علی اصغر کی، اور اکبر غازی نے سینہ پسینہ کھائی ہے، قید ہو کر کھلے سر کوچاؤ بازار پھری، اور دختر فاطمہ زہرا کی رسوائی ہے، اور اہل کعبہ مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جو غیر مومنین کھڑے ہیں فرش اللہ کے اندر تشریف لے آئیں، درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ شراب عشق علی ہے، سکھا 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 پیو، اور جو جل رہے ہیں موجل کی جان کے غرض کسی کو سلا 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 کے پیو۔ صبر ضریر ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں بولائے کائنات کو، علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی۔ نعرہ حیدری! سورہ فاتحہ۔ دعا کیجیے بارگاہ حکمتی میں، پروردگار مجھے واسطہ اپنے اسماء و صفات کا، اپنے حدود و صفا کا واسطہ، اس ماہ محرم کا واسطہ، خلوص سے لوگوں نے جو روزہ داری کی عبادت کی ہے اس کا واسطہ، مجھے واسطہ اپنے اسماء الحسنی کا واسطہ، مجھے محمد علیہ السلام تمام انبیاء کرام کا واسطہ، شہدائے کربلا و شہدائے کربلا کا واسطہ، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، پروردگار کہ تیرے بندے یہ عزادار دلوں میں کچھ حاجات رکھتے ہیں، پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو پورا کرنا،
तमाम बीमारों और जख्मियों को शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद सालिहा अता फरमा, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, दे चुके हैं, उन्हें कामयाबी नसीब फरमा, जो आला तालीमी इदारों में दाखिले के ख्वाहिशमंद है उन्हें कामयाबी अता फरमा, जो हज और ज़ियारत के मुतवद्दी है उन्हें मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार मुमलिकत पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगार दुनिया भर में जहाँ जहाँ मोमिनीन जालिमों के खिलाफ बरसर पैकार है उन्हें कामयाबी नसीब फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दे। परवरदिगार वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जारिसारों में शुमार फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन अज़ादारी के सिलसिला में दावे दे हमें कदम सुखाने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार उनको आफात समावी और अर्ज़ी से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल मदनिय्यिल अत्तहित्तिहामी वर्रसूलुल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वआलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना। बलद आवाज़ से दुरूद भेजे मोहम्मद साबिर गिराम नज़र यकूम मुहर्रम को 12 साल कुरान के उन्वान से जिस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज किया, आज वो सिलसिला खत्म हो रहा है। मौजू यकीनन तशरा रह गया, अधूरा रह गया और जाहिर जो दामन वक्त गुंजाइश होती है उसके मुताबिक कोशिश की, मेरी कोताही रही। आपके सामने भी और बारगाह अहदियत में भी माफी का तलबगार आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। परवरदिगार का ऐलान कि हमने इस किताब का वारिस अपने मुस्तफा बंदों को करार दिया। कुरान परवरदिगार का वो कलाम जो हर मुसलमान के घर में मौजूद है। इसका कमाल ये कि मुसलमान शहर पेशावर का रहने वाला हो या इस्लामाबाद का, मदीने में रहता हो या मक्का मुअज़्ज़मा में, करबला में रहता हो या काबुल में, तेहरान में रहता हो या यूरोप के किसी शहर में, अमेरिका के शहरों में रहता हो या अफ्रीका के देहात में, हर जगह कुरान एक है। हर जगह कुरान एक है और यह कुरान ही है जिसने मुसलमानों को बड़ी हद तक मुत्तहद और मुनज़्ज़म रखा हुआ है। तो जिस तरह कुरान साबित हर जगह एक है, अगर कुरान नातिक़ को भी संभाल लेते हैं तो मुसलमान कहाँ होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत है और हर मौजू के अखबार से कुरान मौजूदा है, उसमें से चंद आपके सामने पेश किए, लेकिन आज उसी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। परवरदिगार का कुरान मजीद के लिए ऐलान मैंने गुज़िश्ता दिनों अर्ज किया। कुरान तासीर रखता है, लोगों पर असर रखता है। खुद परवरदिगार कहता है इस कुरान मजीद के लिए, इसकी तासीर के लिए कि ये कुरान क्या है। जब इसकी आयत लोगों पर पढ़ी जाती है,
इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू वसजुदू वबकिया, तो रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। कुरान की एक तासीर ये कि जो सुनता है कलाम उस पर असर करता है, बशर्त ये कि समझ रहा हो। सजदे में गिर जाते हैं, रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। यह ऐलान कुरान के लिए था। मेरे गुज़िश्ता दिनों की गुफ्तगू जब इमाम रज़ा नेशापुर में पहुंचे हैं और लोगों की फरमाइश पर, लोगों की ख्वाहिश पर महफिल से बाहर रूह अनवर आया। जैसे रूह मुबारक पर नजर पड़ी, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, लोग देख रहे थे, रो रहे थे, सभी पे गिर रहे थे। पता चला जो एजाज कुरान का है वही वारिस कुरान का है। वारिस कुरान का भी यही एजाज है। इसी तरह कुरान मजीद के एजाज ये, कुरान का एजाज ये कि परवरदिगार फरमाता है, मैं ये तमाम आयत पढ़ चुका गुज़िश्ता दिनों में, कुरान के लिए फरमाता है ला यातिहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, बातिल इसमें न आगे से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। कुरान हक का कलाम है और रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली तुम हक पर हो, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जहां अली मुड़ रहे हैं। कुरान भी हक है, हमारी से कुरान भी हक है। सूरह हश्र में फरमाया, सूरह हश्र में लो अन्ज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाज़िल करते तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। और मुबाइले के दिन जब ईसाइयों ने बच्चेतन को देखा तो कहा आज वो चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ को इशारा करे तो वो भी टुकड़े हो जाएगा। गोया जो कुरान है वही वारिस कुरान है। दुरूद है जो मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर। कुरान की एक खुसूसियत शिफा, हलाकत से बचाने वाला कलाम। कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए, हलाकत से बचाता है। और देखिए बहुत वाज़ेह और आपके वाकिफ है तमाम वाक़यात से कि खुद खलीफा दो हजरत उमर ने कहा या अली अगर आप न होते तो मैं हलाक हो जाता। एक नहीं 70 मरतबा खलीफा दो पे ये जुमला मिलता है, या अली आप न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो अली ने हलाकत से बचाया। और इमाम अबू हनीफा का भी ये जुमला तारीख में मौजूद है। वो फरमाते हैं अगर इमाम जाफर सादिक की खिदमत में 2 साल न गुजारता तो मैं हलाक हो जाता। ये दूसरी शख्सियत, बड़ी शख्सियत। और मुतवक्किल तो हलाक होने के करीब ही पहुंच गया था। मुतवक्किल हलाकत के करीब था, उसके जिस्म में ऐसा फोड़ा निकला था कि तमाम अतब्बा, तमाम जर्रा आजिज़ आ गए, इलाज से नहीं हो सकता इलाज। अगर चीरा लगाते हैं तो ये मर जाएगा। लिहाजा उसकी मां ने देखा जब दुनियावी तबीब बेकार हो गए, आजिज हो गए, तो क्या करे? कहा भाई इमाम से रुजू करो। इमाम नजरबंद है, इमाम अली नज़ी नजरबंद है। एक बार कहा मौला मेरे बेटे की जिंदगी अब आपके हाथ में है। और क्या बात है इनकी, जिस तरह सरकार रहमतुल लिल आलमीन है तो ये भी तो उन्हीं की औलाद है, उन्हीं के जानशीन है। इमाम ने हल बताया अजीब हल है। कहा देखो बकरी की बेगरी है जो उसके पैरों के लिए अच्छे आगे कुचल गई। देखिए ये कयामत तक के सबके लिए है। इमाम ने हिदायत दे दी कि जो उसके पैरों के नीचे आके गुजर गई हो उन्हें लो, उनका सुफूफ बनाओ और अर्द गुलाब में मिलाकर लेप बना लो और वो उसके घोड़े पर लगाओ। जब इमाम ने ये बताया सब हंस पड़े कि इमाम ने अजीब हल बता दिया। लेकिन मां ने कहा क्योंकि हुक्म इमाम है करना होगा। खुद मुतवक्किल भी आजिज था, खुद वो बादशाह भी आजिज था। कहा ठीक है ये भी करके देखो। जैसे ही किया दिन नहीं गुजरा था, थोड़ा फूट गया, जख्म ठीक हो गया, शिफायाब हो गया, उसे भी हलाकत से इमाम ने बचाया। और बाद में इमाम तो वो है कि जिनके दम कदम से ये कायनात मारनी है। जब तक वो मौजूद है कायनात मारनी है, वो न हो सब हलाक हो जाए तो 1 से लेके 12 तक सब हलाकत से बचाने वाले हैं। दुनिया इतना तो समझे हलाक होने वाला और होता है हलाकत से बचाने वाला
दुनिया समझे। और देखिए कुरान मजीद का एक इल्म है, इल्म जरी, जो सिर्फ मासूमीन से वाबस्ता है। जरी कुरान मजीद की तफसीर उस दौर के मुताबिक करना। कुरान मजीद एक मुख्तसर किताब है, देखिए कोई बहुत ज़ख़ीर नहीं। दुनिया में कितनी किताबें जिनका हजम बहुत ज्यादा, कुरान एक मुख्तसर किताब, भाई 6666 आयत, मुख्तसर किताब। हिदायत करना है क़यामत तक हिदायत करना है। लिहाजा सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह इस लफ्ज के क्या मायने है? कहा यह मायने है। दूसरे सहाबी ने पूछा, एक और मायने बताए, कहा या रसूल अल्लाह क्या 2 मायने है? कहा 2 नहीं 7 मायने है। कहा 7, कहा 7 नहीं 70, कहा 70, कहा 70,000। कहा यह कुरान के बातिन है, कुरान के बातिन तवज्जो चाहूंगा। अब इस पर मग़रिबी नामनहाद दानिश्वरों ने एतराज किया कि यह बातिन की जरूरत क्या है? भाई जाहिर काफी था। देखिए ज़वाहिर कुरान हुज्जत है, जो जाहिर है वो हुज्जत है, और जो बातिन है वो फजीलत है, वो फजीलत है। जो जाहिर है अमल उस पर होगा, क्योंकि बातिन सबको नहीं पता, सबके सामने नहीं है। 70,000 बातिन, ये बातिन किस लिए 70,000? कुरान मुख्तसर किताब, लेकिन हिदायत क़यामत तक देनी है। लफ्ज वही रहेगा और हिदायत के पहलू नए से नए सामने आते रहेंगे। मैं शायद बात को पहुंचा नहीं पा रहा अपनी। देखिए दूध भेजिए जरा मोहम्मद आले मोहम्मद, बच्चों बैठ जाओ। एक मरतबा आप मिलकर दूध भेजिए जरा मोहम्मद आले मोहम्मद। बेटा तबरुक मजलिस के बाद बैठिएगा, जाके बच्चों का जज्बा है, मजलिस के बाद तबरुक बढ़ सकता है। इल्म जरी, कुरान की तफसीर, ये बातिन है क्या? ये बातिन जरूरी क्यों है? ये बातिन इसलिए जरूरी है कि वक्त के साथ जब जमाना आगे बढ़े, लोगों तक उसका मफहूम पहुंचे और हिदायत का सिलसिला मुकम्मल होता रहे, इसलिए ये बातिन जरूरी। जब बातिन सामने आ जाएगा तो वो बातिन नहीं रहेगा, जाहिर हो जाएगा। बातिन जब तक बातिन है, जब तक हमें मालूम नहीं होगा। जहां मालूम हो गया वो जाहिर हो गया, क़यामत तक सारे बातिन जाहिर हो जाएंगे, सारे बातिन जाहिर। मैं मिसालें 2 दे देता हूं कि पूछा किसी ने आके चौथा इमाम से, क्या कुरान मजीद में आया है वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कि खाओ पियो और असराफ ना करो, इसका मायने क्या है? इमाम ने फरमाया तुमने क्या समझा? क्या मतलब इतना खाओ कि जाया ना हो। अब माजरत के साथ हम शादी ब्याह में ही जाया नहीं करते, हम मजालिस का तबर्रुक भी जाया करने लगे। अफसोस का वहां पे तबर्रुक है, मुझे बस इस जुमले से आगे कुछ नहीं करना कि खाओ पियो और जाया ना हो। इमाम ने कहा समझो इसे, परवरदिगार का फरमान यह है खजूर खाओ और गुठली बो दो। खजूर खाओ गुठली बो दो, गुठली फेंक देना भी असराफ है। रिसाइकिलिंग, कोई चीज जाया ना हो, बदन हासिल करते रहो। खुद इंसानी इसी तरह मिल सकती है। दूसरा वाक़या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, तवज्जो है ना मजरा, आगे तशरीफ लाई, दूध है जो मोहम्मद आले मोहम्मद आले देखिए मामून का दौर, एक शख्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, गवाहियां पूरी हुई, का हाथ जारी करो, हाथ काटो। उसके दरबार में मुफ्ती बहुत होते थे, पूछा कहां से काटे? एक ने कहा कलाई से काट दो, कलाई के बाद जोड़ से यहां से। दूसरे ने कहा नहीं आधी कलाई, एक ने कहा कौली से कटता है, यहां तक के बाजू तक कटवाने वाले मौजूद थे।
मामून ने कहा शरीयत एक है, हुक्म इतने सबने अपने फतवे के लिए अहादीस पेश करना शुरू कर दी। एक चीज है, अहादीस का सिलसिला जो है ना, जाली अहादीस का कब से है, सबने पेश करनी शुरू कर दी। मामून ने कहा भाई ये तो लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही। किसी ने कहा इमाम रजा को तो बुलाओ, मुझसे पूछो। हाँ, इमाम को बुलाया गया, बस क्या किया जाए, दुनिया की किस्मत में यही है, जब ठोकर पे ठोकर लगती है तब इमामत याद आया करती है। आए इमाम की खिदमत, बुलाया, मौला आ गए। मौला आए और कहा क्या मामला? कहा ये मामला है। कहा इसकी सिर्फ 4 उंगलियां काटी जाएगी। चोर का हाथ क्या कटेगा? ये उंगलियां काटी जाएगी। सब अब तक लड़ रहे थे आपस में, जैसे ही इमाम ने हुक्म बताया सब एक हो गए और कहने लगे दलील क्या है आपके पास? भाई यही तो हमने आज तक देखा है, वैसे लड़ते रहते हैं, जहां हक वाला आ जाता है सब एक हो जाते हैं। यही आज तक देखा गया, सब बातें एक हो जाते हैं। दलील क्या है आपके पास? अब अजीजों, वारिसाने कुरान की शान ये है, जब गुफ्तगू करते हैं तो यही कहते हैं क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? और सुनने वाले ये कहते हैं खुदा की कसम लग रहा है आज पहली बार पढ़ रहे हैं। इमाम ने कहा क्या तुमने कुरान में पढ़ा नहीं? परवरदिगार आलम फरमाता है, वाज़ेह तौर पर परवरदिगार आलम फरमाता है कि देखो देखो कि ये मकाम सजदा, सजदा क्या है? ये अल्लाह के लिए है, मकाम सजदा अल्लाह के लिए है। तो अब क्या मायने हुए? अब सबके सब परेशान है। अब्दुल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के लिए क्या मायने? सब कह रहे हैं कि जी मस्जिद अल्लाह का घर है, क्योंकि इसके मायने अब्दुल मसाजिद लिल्लाह क्या हुए? का मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के लिए, किसी को रोक नहीं सकते, सबको आने की इजाजत। मैं ये बात फख्र से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जो मस्जिदें असरा अशरी हजरात ने तामीर की है, ये जिनका इंतजाम उनके पास है, उसमें मुसलमानों के हर वक्त का फर्ज आ सकता है, बेरोक टोक आ सकता है। कोई उससे नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि कैसे नमाज पढ़ रहे हो, उसका मामला अल्लाह का मामला है। हमारी इमाम बारगाह मुसलमानों ही नहीं गैर मुस्लिमों के लिए भी खुली है, सब आ सकते हैं, सब आए और देखे यहां क्या दिया जा रहा है, यहां क्या हो रहा है, खुद अपनी आंखों से देखे, सुनी सुनाई पर यकीन ना किया जाए। तो अब इमाम ने कहा अंदर मसाजिद लिल्लाह, क्या मायनी? कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, सारी मस्जिद अल्लाह का घर। इमाम ने कहा मस्जिद से मुराद क्या? कहा मकाम सजदा। कहा मकाम सजदा क्या है? कहा ये पेशानी है, ये दोनों हाथों के गट्टे हैं, ये दोनों घुटने हैं, ये पैरों के अंगूठे हैं। इमाम ने कहा ये अल्लाह के लिए है। अरे चोर को सजा दो, नमाज से तो न रोको, हाथ कर जाएगा, नमाज कैसे अदा करेगा? अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मसाजिद अल्लाह के लिए है। अब तक ये मायने किसी को मालूम न था, ये बातिन था, इमाम ने जाहिर कर दिया और बता दिया। बातिन को समझना है तो वारिस कुरान के पास आना होगा, वारिस कुरान के पास आना होगा। और फिर तमाम अली को देखिए, और एक अली का और जिक्र, और गुफ्तगू खत्म करूंगा बस में। और ये अली कौन? जिनका नाम मोहम्मद है, लेकिन तकवा इतना कि लोग तकी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। घबरा तो नहीं रहे। इमाम का सिर बमुश्किल 8 या 9 साल, 9 बरस हो, ज्यादा कर लीजिए। और 8वें इमाम की शहादत के बाद मामून ने इन्हें मदीने से बुला लिया, और मामून भी आ गया है बगदाद, मरो को छोड़ के बगदाद आ गया। इमाम को भी वहीं बुला लिया, और जो बादशाहों का तरीका होता है, बुलाया भूल गया। एक दिन शिकार पर निकला, और जैसे कि हुक्मरानों के साथ होता है कि 50 उनका अफराद साथ प्रोटोकॉल आगे बढ़ा। एक मैदान में बच्चे खेल रहे थे, जब बादशाह की सवारी आती देखी बच्चे भाग गए,
मामून ने देखा सब भागा, एक बच्चा अपनी जगह खड़ा है। चला गया, बच्चे फिर आए, फिर खेलने लगे। कुछ वक्फे के बाद फिर आया, बच्चों ने देखा, फिर भाग गए, देखा सब भाग गए, वो बच्चा अपनी जगह खड़ा है। पर इतना तो समझ गया होगा, जो भागने वाले हैं उन्हीं की औलाद है, जो बदरो हद में भागते रहे, जो खड़ा है यकीनन उसी की औलाद है, जो बदर का भी फाते था और का भी फाते था। उसने इमाम को कहा किसी सदर ने बच्चों को एक तो बुलाओ, करीब आए, कहा अपना तारुफ कराइए। आपने तारुफ कराया, कहा हमने सही समझा था। एक बार अपनी मुट्ठी इमाम के आगे करता है और कहता है बताइए इसमें क्या है, इस मुट्ठी में क्या है। देखिए अगर इमाम जवाब दे दे क्या है तो बदयानत मौरख लिखेगा कि भाई वो खुशबू आ गई होगी, या वो तो कहते हैं हमारे यार हमारे मुहावरे में तुक्का लग गया, ये हमारे सही कोई बात हो गई। वो इमाम भी क्या जो एक जवाब दे, इमाम का मकसद है ज़हन के दरीचे खोल दे, उलूम के दरिया बहा दे। इमाम ने अब गुफ्तगू की, उसने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या है। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने, ये भी है इमाम का तरीका कि वो परवरदिगार का जिक्र सबसे पहले करते हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़मीन की तरह आसमानों में भी समंदर बनाए हैं। जिस तरह जमीन के समंदरों में मखलूकात है, उसी तरह आसमान के समंदरों में भी मखलूकात है। बादशाह शिकार के लिए निकलता है, अपना बाज छोड़ता है, बादशाह का बाज आसमानी समंदर से मछली का शिकार करता है और बादशाह को लाकर देता है, और बादशाह मुट्ठी में बंद करके इल्म इमामत का इम्तिहान ले रहा है। इमाम ने वादे कर दिया ये इल्म इमामत है जो हम बता रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये इल्म इमामत है। सिद्ध इब्न जौज़ी आलिम अहले सुन्नत इस मकाम पे अजीब तबसरा करते हैं। सिद्ध इब्न जौज़ी कहते हैं दुनिया की बातें बहुत से उलमा ने की है, दुनिया की खबरें बहुत से उलमा ने दी है, लेकिन आसमान की खबरें या अली ने दी है या औलाद अली ने दी है। मेरे ख्याल में ये देखिए यही इमाम जब मामून ने इज्जत की, सबने कहा एक 9 बरस के बच्चे का इतना है तरफ का मुकाबला कर लो। दरबार भरा दरबार, काज़ी यहया इब्न अक्सम को लाया गया, अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। इमाम से मनाज़रे के लिए एक तख्त पर मामून, दूसरी तरफ इमाम रौनक अफरोज मामून से कहता है कि क्या मैं इनसे कोई सवाल कर सकता हूं। मामून ने कहा इनसे खुद पूछ लो। गया इमाम के पास, क्या आपसे कोई सवाल कर सकता हूं। यहां जवाब की वही शान है, सलूनी सलूनी अल्लाह, जो चाहो पूछो। बस उसने सोचा नमाज रोज आती होगी, 9 बरस का बच्चा है, हज का सवाल कर लो। सवाल किया ये बताइए हालत है हराम में अगर कोई शख्स शिकार कर ले तो उस पर क्या हक है। हालत है हराम में अगर शिकार कर ले क्या हक है। भाई सारे साहिबाने फहम में बातें आपने पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, लेकिन फिर मुझसे सुन लीजिए। इमाम ने फरमाया तेरा ये सवाल ही अबस और गलत है, सवाल ही तेरा गलत है, ये है इमामत, सवाल गलत है। कहा वो कैसे। कहा पहले ये तो बता एहराम हज का था या उम्रे का एहराम था। शिकार हिल में किया या हरम में किया, शिकार दिन में किया या रात में किया, शिकार करने वाला बच्चा है या बड़ा है, बालिग है या नाबालिग है, शिकार करने वाला आजाद है या गुलाम है, शिकार परिंदे का किया या चौपाई का किया, जिस शय का शिकार किया वो भी बच्चा थी या वो भी बड़ी थी, बालिग नाबालिग वो थी। ये तो बता शिकार करने वाला अपने फेल पर शर्मिंदा है या असरार करता है। जरा पहले ये तो बता, फिर हर एक की अलग अलग शिफ्ट तुझे बताता हूं। यहया इब्न अक्सम के पेशानी से पसीना बह निकला और मजमा असरत कर रहा है, असरत कर रहा है और वाज़ेह हो रहा है कि इमाम ही ये 12 इमाम ही वारिसाने कुरान है, ये वारिसाने कुरान है। इनके सिनो साल पे न जाओ, अगर पीरी में हो जब भी वारिस कुरान है, गोद में हो तब भी वारिस कुरान है। ये सब वारिसाने कुरान के साथ रहे, कुरान ने भी इनका साथ दिया।
कुरान ने भी इनका साथ दिया, मंजिल मसाइब नहीं, मगर ये जुमला कहूंगा, अगर फारिसान कुरान पर तलवारें लगी है, कुरान को भी तलवारों पर रखा गया है। फारिसान कुरान को लेने लगे हैं, कुरान भी नेज़ों में बुलंद किया गया। फारिसान कुरान को तीरों को निशाना बनाया है, तो कुरान को भी तीर मारे हैं। किसने? किसी और ने नहीं, ये जालिम बनु उमय्या के हुक्मरान करते रहे हैं। तफसीर जिसे देख रही है हमारी को देख सकता है कि कुरान के साथ जुल्म किया। वारिसान कुरान ने बताया कुरान की अजमत क्या है, कुरान को पहचानो। और कुरान और वारिसान कुरान बस अजीजों मौजूद तशना है, मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं इस मकाम से आगे नहीं जा सकता। हाँ, बस ये अर्ज करूंगा, जब इमाम सफर में थे, आपने एक बार कुरान मजीद से फाल ली, ये भी इमाम ने तरीका बताया। फाल ली और जो आयत आई है ना, वो हजरत याहया के हवाले से आई। फैसला हो गया, हजरत याहया खुद इमाम ने कई जगह हवाला दिया हजरत याहया का कि इस कौम की पस्ती की इससे बड़ी क्या मिसाल दी जा सकती है कि याहया जैसे नबी का सर बदकार तरीन औरत को तश्तरी में रख के तोहफा दिया गया। यह है मिसाल। इमाम सबके सामने अमर वाज़ेह कर रहे हैं। हाँ अजीजों, सवाल होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इमाम ने जदीद के खिलाफ बयान किया, कि इमाम ने सब कुछ उड़ा दिया, जदीद के खिलाफ बयान किया। ऐसा आखिर हुआ क्या था? अभी मैंने अर्ज किया, मैं बता नहीं पड़ा। हजरत याहया की मिसाल इमाम ने दी। याहया कौन? मैं चौथी मजलिस में अर्ज कर चुका, जनाब फिक्रिया नमाज शब में दुआ मांगते थे, अल्लाह ने याहया जैसा बेटा अता किया। और औसाफ पता है, सलाम हुआ याहया पर, जब पैदा हुए, जब मरेंगे, जब कयामत में उठाए जाएंगे, याहया पर सलाम। ये दौर वो है जनाब याहया और ज़िक्रिया का कि जब इनके मुल्क के हाकिम रोज एक शादी करता है, बीवी को तलाक दे देता है। एक औरत जो इसकी तलाक याफ्ता थी, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई जो इसी बादशाह की बेटी है। उसने बादशाह से इंतकाम लेना चाहा। जब वो जवान हुई, बादशाह को दिखाया, वो मर मिटा। उसने कहा मैं इससे शादी करूंगा, इससे शादी करूंगा। अब उस औरत के मुतालबात बढ़ रहे हैं, ये खबर फैल गई। बादशाह उस औरत से शादी करना चाहता है। तब जो चाहूं कर दी। बस जब यह खबर फैली तो बनी इसराइल का दौर है, उलमा यहूद, उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी कि ये नहीं हो सकता, शरीयत मुस्लिम है, तौरात के मुताबिक बाप बेटी का निकाह नहीं हो सकता, जायज नहीं है। बस जब उलमा यहूद ने मुखालफत की, एक बार बादशाह ने खजाने के मुंह खोले, भाई कुव्वत एहसास मिटा दी दरहम दीनार से, और जुरत इजहार खत्म की तलवार के जोर पर। सब मुफ्तियों ने लिख के दे दिया फतवा कि ये शादी जायज है, ये शादी जायज है। सब मुफ्तियों ने फतवा दिया। जनाब ज़िक्रिया को जब अल्लाह ने याहया अता किया, मैं चौथी मजलिस में अर्ज कर चुका, ज़ईफ हो चुके, 100 बरस के लगभग उम्र, माजरत चाहता हूं, 100 बरस के लगभग उम्र जनाब ज़िक्रिया घर से निकल नहीं सकते थे। लेकिन जब पता चला कि मुफ्तियों ने ये फतवे दे दिए हैं कौम यहूद के, एक बार घर से बाहर आए इबादत गाह में और खिताब किया कौम से कि या कौम तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे सामने इंसानी रिश्ते की हुर्मत पामाल हो रही है, तुम खामोश कुछ नहीं बोलते। जब ज़िक्रिया का खिताब इस तरह हुआ
बादशाह ने लोगों पर पाबंदी लगा दी कि ज़िक्रिया के घर के करीब जो इबादत गाह से कोई नहीं जाएगा। ज़िक्रिया नहीं बोल सके। याह्या से कहा बेटा तुम जवान हो, 18 बरस की उम्र, जाओ। याह्या चले, गली गली महल्ला महल्ला एक एक दर खटखटाया, लोगों से कहा तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया, देखो मुस्तकबिल में कोई रिश्ता सही नहीं होगा, पाकीज़ा सब कुछ तबे हो जाएंगे। अगर बादशाह ने ये अमल कर लिया तो पूरी कौम को कौन रोक सकेगा जब मुफ्ती फतवे दे चुके हैं। लेकिन लोग खामोश हैं। याह्या की तहरीक बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता रद्द अमल आने लगा। कुछ लोग याह्या के साथ होने लगे। जब ये मंजर उस औरत ने देखा खौफजदा हो गई, और लोग याह्या के साथ न हो जाए। बादशाह से कहा मुझे, मैं शादी बेटी की तब करूंगी जब मुझे याह्या का सर दिया जाए। बादशाह ने ज़िक्रिया को भी कत्ल कराया। जनाब याह्या का सर काटा, तश्तरी मुसारत तो फतन दिया। याह्या का जिस्म, उस पर मिट्टी डाली गई, खून ने जोश मारा, बाहर निकल आया और मिट्टी डाली। मजलूम का खून था, जोश मारा ऊपर आ गया और मिट्टी डाली, खून बाहर आ गया। मिट्टी डाली जाती रही यहां तक के टीला बन गया। याह्या का खून जोश मार के बाहर आता रहा। अरे मजलूम का खून है, जितनी मिट्टी डालो दबेगा नहीं। अगर एक ही याह्या का खून टीले से बाहर आ सकता है तो 72 का खून पूरी दुनिया को हिला सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, शह याह्या, जुर्म क्या था बादशाह का, ये जुर्म याद रखिएगा। और अब करबला की हसीर रिहा होकर बदन पहुंचे। जब बदन आए, सैयद सज्जाद ने वाकयात बताए। एक सहाबी रसूल सहाबी के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ला, हज़ला कौन? रसूलुल मलाइका, जिन्हें मलाइका ने गुस्ल दिया, ओहद के शहीद, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला। उन्होंने कहा भाई हम खुद तहकीक करेंगे, हम खुद तहकीक करेंगे कि यजीद ऐसा है जैसा सैयद सज्जाद कह रहे हैं। सज्जाद कह रहे हैं यजीद कौन है? वो जो बंदरों के साथ खेलता है, अपने साथ सुलाता है, जो कुत्तों को नचाता है, जो शराबनोश, वो यजीद जो फासिक और फाजिर, जिसने हुर्मत खुदा और रसूल को पामाल किया, वो यजीद जिसने मां बहन के फर्क को मिटा दिया। वो उन्होंने कहा हम तहकीक करेंगे। अहले मदीना ने कहा 10 अफराद, बाद रिवायत में 16 अफराद, कि ये जाए दमिश्क और तहकीक करें यजीद ऐसा है जैसा इमाम कह रहे हैं। 1 महीने का वक्त था, ये तहकीक करके आएंगे। ये 15 दिन से पहले आ गए। पूछे इतनी जल्दी क्यों आ गए? हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ला ने कहा खुदा की कसम, अगर हमें ये खौफ ना होता कि आसमान से जो पत्थर आने वाले हैं हम भी उनका शिकार हो जाए तो हम कुछ देर और रुक जाते, लेकिन इस खौफ से चले आए इसलिए कि यजीद तो वो है जिसने माँ बहनों के रिश्तों का फर्क मिटा दिया है, उनकी हुर्मत को पामाल कर दिया है। तो अगर एक जुर्म पर याह्या और ज़करिया जैसे नबी क़याम कर सकते हैं तो यजीद के जराइम का शुमार नहीं, उसके खिलाफ अगर हुसैन क़याम करते हैं तो फिर एतराज करने वाला मुनाफिक ही नहीं मुशरिक हो जाता है। हुसैन ने क़याम किया और अहले मदीना को बताया, अहले मक्का को बताया, हाजियों को बताया, उम्रा करने वालों को बताया। लोग साथ नहीं दे रहे। यही अलमिया है। करबला आ गए। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। खुद ने खत इब्न ज़ियाद को लिखा। 3 मुहर्रम से लश्कर में लश्कर आने लगा। बहन ज़ैनब ने कहा भैया हर तरफ दुश्मन, कोई दोस्त भी है? इमाम ने एक खत अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को लिखा। दोस्त भी चला आया। अजीजों 9 मुहर्रम आ गई। 7 मुहर्रम से पानी बन गए। हयात हुसैनी के छोटे छोटे बच्चे भी। 9 मुहर्रम आई, असर के करीब उमर साथ ने हमले का हुक्म दे दिया। जब फौजें हयात हुसैनी के करीब हुई, एक बार इमाम ने अब्बास से दिलावर से कहा जाओ इनसे पूछो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ये जंग या बैत? इमाम ने कहा 1 रात की मोहलत, 1 रात की मोहलत। फौजें वापस हो गई। वो रात इबादत में मसरूफ हो गई थी। वो रात
जो शब आशूर कहलाती जाती, चलाने वाली रात। इमाम ने एक बार अपने तमाम साथियों को खैमे में बुलाया और कहा, ऐ मेरे दोस्तों, ये कौम नमकार फकत मेरे खून की प्यासी है। मैं अपनी बैत ऊपर से उठा रहा हूं, अंधेरे को ढाल बनाओ और जहां दिल चाहता है चले, कोई अपनी जगह से ना हिला। इमाम ने कहा, शायद तुम ये सोच रहे दुनिया का क्या कहेगी, तुम मेरे अहले बैत में से एक एक फर्द को साथ लो और क्या ना इनकी हिफाजत की। फिर भी कोई ना हिला। इमाम ने कहा, शायद मेरे चेहरे से तुम शर्म आ रहे हो। बेटा अकबर, जरा चिराग खुल कर। चिराग खुल हो गया। थोड़ी देर बाद जब इमाम ने कहा, अकबर दोबारा रोशनी करो, अब जो रोशनी की तो मंजर अजीब है। छोटे छोटे बच्चे पल्लों के पास खड़े हैं कि हम बड़े नजर आए। बूढ़ों ने अपना अमामा सर से उतार के कमर से बांध लिया है कि वो बीमार और कमजोर नजर न आए। जवान सीना ताने खड़े। सबसे पहले अबुल फजल अब्बास ने कहा, आका ये कैसे मुमकिन है कि हम आपको तरह छोड़ दें? खुदा की कसम, ऐसी हजारों जाने अब तक बर्बाद। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, आका ये मुमकिन नहीं है कि आपके बाद में जिंदा रहूं। ऐसी जिंदगी को मैं फजूल समझता हूं। मैं आपके हमरकाम रहूंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि आका ये मुमकिन है नहीं कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। नहीं। इतने में सईद बिन अब्दुल्ला बढ़े। कहा, मौला अगर मुझे कत्ल किया जाए, मेरी लाश को जलाकर राख को हवा में उड़ा दिया जाए और 70 बार जिंदा करके ऐसा ही किया जाए, फिर भी आपके कदमों से दूर नहीं होंगे। ज़ुहैर कैद ने अपने जज्बात का इज़हार किया। इमाम ने सबको दुआ दी और कहा, खुदा की कसम, जैसे अंसार अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, ऐसे अंसार मेरे बाबा को भी ना मिले, न मेरे भाई को, न मेरे जद रसूल अल्लाह को मिले। इमाम ने अपने अंसार को दुआ दी कि जाओ खैमों में। अंसार खैमों में आ गए। इतने में अजीजों, जनाब ज़ैनब को किसी ने खबर दी। बीबी ज़ैनब ने भाई को बुलाया कि भैया सुराहे कल जंग होगी। कहा, हाँ बहन। कहा, भैया क्या आपने अपने साथियों की वफादारी का इम्तिहान ले लिया है? खैमे के बाहर नासिर बिन अब्दुल्ला खड़े थे। एक बार सर पीटते हुए हबीब इब्ने मज़ाहिर के खैमे के करीब गए। कहा, हबीब गज़ब हो गया, अरे गज़ब हो गया, अरे ज़हरा की बेटी को हम पर एतबार नहीं है। सारे असहाब जमा हुए, ज़ैनब के खैमे के करीब गए और कहा, शहजादी अगर हुक्म दे अपने हाथों से अपना सर काट के आपको पेश कर दे। ज़ैनब ने सबको दुआ। रात गुजर रही है, वो रात शायद शहजादी के दिल से दुआ निकलती हो, ऐ रात तू न ढलना, ऐ रात तू न ढलना। अरे ये रात अगर ढल गई, सकीना यतीम हो जाएगी, फातिमा का घर उजड़ जाएगा। ऐ रात न ढलना, रात गुजर रही है, सुबह नमूदार हो रही है। अकबर ने आबादी, नमाज हुई और फिर जंग का आगाज हो गया। अजीजों, जंग में होता यह है कि तलवारों से जंग होती है, एक एक फर्द आके मुकाबला करता है, लेकिन जब जंग तवील हो जाए तो जंग मगलूबा होती है, यानी तीर फेंके जाते हैं। यहाँ फकत 72 नफूस और उमर साद ने जंग का आगाज ही जंग मगलूबा से कर दिया। हजारों तीर चले, हुसैन के आसार अपने सीने आगे कर रहे हैं और कुर्बान होते जा रहे हैं। जब जंग मगलूबा रुकी, अरे 40,000 शहीद हो चुके, 40 शहीद हो चुके। उसके बाद एक एक करके मैदान में जाते रहे। जब अंसार खत्म हो गए, बनी हाशिम की बारी आई। अरे बनी हाशिम शहीद होते रहे कि नागा एक 13 बरस का बच्चा इमाम की खिदमत में आया। ये बच्चा कौन है? जब रात को हुसैन ने सबको दुआ दी थी ना और शहादत की खबर, इस बच्चे ने कहा था, चचा क्या मेरा नाम भी शोहदा में है?
حسین نے کہا بیٹا یہ بتاؤ شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اس 13 برس کے بچے نے کہا شہادت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ علامہ دقن صاحب اللہ بقبو کہتے ہیں بچے کا یہ کہنا شہد کیونکہ بچہ میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے یہ بات بتاتا ہے سب سے کم سے مجاہد ہے۔ ہاں کربلا میں جو بھی گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ کرنے گئے نا ان میں سب سے کم سے جو ہے قاسم حسن کا بیٹا۔ حسن کی بڑی تمنا تھی نا جنگ کرنے کی۔ ہاں حسن کو زہر دیا گیا تھا، حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ 3 برس کے قاسم نے دیکھا تھا میرے باپ کا لاشا ایک بار گھر سے گیا تھا اور دوبارہ گھر آیا تھا۔ فرق اتنا تھا جب پہلے گھر سے گیا تھا لاشے پر سفید چادر تھی اور جب واپس آیا ہے چادر خون سے رنگی تھی۔ قاسم کو سب یاد ہے، شاید اسی وقت تہیہ کر لیا ہو بابا اگر آپ کا جگر ٹکڑے ہوا، آپ کا جگر ٹکڑے ہوا میں اپنے جسم کے ٹکڑے راہ خدا میں پیش کر دوں۔ امام کی خدمت میں آئے چچا جان جنگ کی اجازت دی تھی۔ امام نے قاسم کو سینے سے لگا کر کہا بھائی بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ قاسم روتے ہوئے اپنی ماں کے خیمے میں آئے۔ بی بی ام فرما نے پوچھا قاسم رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مادر گرامی چچا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی ام فرما نے کہا قاسم یاد ہے تمہارے بابا نے دنیا چھوڑنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ قاسم اگر کوئی بہت مشکل وقت آئے تو میرا وصیت نامہ کھول کے دیکھ لینا۔ قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور کھول کے پڑھا، خوش ہو گئے۔ امام کو بلایا، بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، خط پڑھا اور کہا جاؤ قاسم کو پھر اجازت دی۔ قاسم کو تیار کیا، کس طرح تیار کیا ہے؟ اتنے کم سن ہے کہ سر پر خود نہیں آ سکتا۔ حسین نے عمامہ باندھ دیا، جسم پہ کوئی ذرا نہیں آ رہی تھی۔ امام نے ایک چھوٹا سا کرتا قاسم کو پہنایا، دلدل لایا گیا جو جھگوڑوں میں چھوٹے خط کا تھا، لیکن حسین نے گود میں بٹھا کے دلدل پر سوار کرایا۔ حبیب بن مسلم یزیدی فوج کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مہتاب خیمے سے طلوع ہو رہا ہے جس کے ایک پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، پیر رکعت تک نہیں پہنچ رہے۔ قاسم میدان میں آئے اور فوج یزیدی کو للکارا۔ ابن سعد نے کہا، ابن سعد نے ایک سردار سے کہا الزخشانی جا مقابلہ کر۔ کہا میں عرب کا نام پر پہلوان ہوں، یہ بچہ ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے کو بیٹے کو بھیجا، قاسم نے 2 نیم کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ تیسرے چوتھے کو بھیجا، قاسم نے سب کو موت کے گھاٹ اتارا اور سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ قاسم کے مقابلے پر آیا۔ ایک بار حسین نے کہا فطرہ بھابھی سے کہہ دو بیٹے کے لیے دعا کرے، ارے بہت بڑا پہلوان مقابلے پر آیا ہے۔ وہاں میں فرما مصلی میں بیٹھی، ہاتھ بلند کیے، وہاں قاسم کی تلوار چلی اور زخشانی بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب یہ منظر عمر سعد نے دیکھا، فوج سے کہا ارے یہ بچہ نہیں ہاشمی شیر ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ ارے فوج نے حملہ کیا، حسن کا لال فوج میں گر گیا ہے، کہیں سے تیر لگ رہے ہیں، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلوار۔ ارے کب تک جنگ کرتے؟ آخر زمین پہ آئے، ارے یہ واحد شہید ہے۔ گرتے وقت ماں کو آواز دی
کربلا کے